Good morning, my dear students. How are you all? In today's class, we'll discuss the 6th chapter of poetry, that is Amanda. Children, it's a beautiful poem, and after reading this poem, obviously you are going to feel yourself connected with this poem, because this poem is about a little girl like you. She is also a teenager. So before discussing the poem, let's discuss something about the poetess. So this has been written by Robin Klein. She was born in Australia in 1936. 1936 में ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था. एंड शी लव्ड किड्स अलॉट. इनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे. एंड शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स अबाउट चिल्ड्रन. बच्चों के बारे में बहुत सी बुक्स लिखी हैं इन्होंने. शी वॉज ऑल्सो नोन एज अ राइटर ऑफ children. Okay, so dear children, in this poem this is a girl Amanda. She is a teenager. वो एक teenager है. And her mother is also there. उसकी mother भी हैं. And she always nags her. वो उसको हमेशा nags करती हैं. Her mother always interrupt her. She always keeps on giving instruction her. वो हमेशा उसको instruction देती रहती है. So sometimes she feels fed up. वो कभी कभी बहुत ज़्यादा fed up feel करती है. Okay, now let's discuss the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Write the meaning of some difficult words. There's a word hunch. Hunch means bend. One more word is there, slouching. Slouching means also bend. इसका मीनिंग भी झुकना ही होता है. तो इन द फर्स्ट पैराग्राफ हर मदर इज आस्किंग हर दैट यू शुड नॉट बाइट योर नेल्स. वो कह रही हैं उससे कि तुम्हें अपने नेल्स नहीं काटने चाहिए, ना नेल्स नहीं बाइट करने चाहिए. जनरली इट हैपन्स व्हेन एवर यू आर इन एनी ट्रबल और यू आर थिंकिंग समथिंग. आप कुछ सोच रहे हैं तो आप अपने नेल्स बाइट करने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. तो उसकी मदर उसको मना करती है ये सब करने से. And again she is saying, don't hunch your shoulders. You should sit straight. Your posture should be straight while sitting and while moving. You should sit straight. You should not bend your shoulders. अपने shoulders को तुम्हें झुका कर नहीं बैठना चाहिए, झुकाना नहीं चाहिए. Stop that slouching and sit up straight. फिर से वो कहती हैं कि don't bend, झुको मत. Why are you keeping your posture like this? There is अब नेक्स्ट पैराग्राफ में 3 lines are there and those are in bracket. So इन lines में जो लिखा हुआ है that is the thinking of Amanda. वो Amanda की thinking है and Amanda is thinking this way. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Languid means calm, relax. Inhabitant is dweller. जो निवासी होते हैं, रहने वाले होते हैं. वन मोर वर्ड इज देयर, ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग इज मूव स्लोली. तो शी इज सेइंग बट आई फील माई सेल्फ दैट एज इफ आई एम लिविंग इन अ सी, एमरॉल्ड सी. एमरॉल्ड मीन्स एमरॉल्ड इज द कलर ऑफ स्टोन, दैट इज जिसको हिंदी में पन्ना बोलते हैं. और जो समुद्र का जो रंग होता है बेटा, वो ड्यू टू फ्लोरा एंड फ्योना वो भी ग्रीन ही होता है. ओके, वाटर इज नॉट ग्रीन बट दैट लुक्स ग्रीन. So she is saying that I feel myself as if I am a mermaid and I'm swimming in a sea. मैं तो in the sea, मैं समुद्र में आज आराम से मूव कर रही हूँ and nobody is there. I am enjoying my freedom. मैं अपनी फ्रीडम को enjoy कर रही हूँ. Nobody is there to interrupt me. कोई वहाँ पर नहीं है मुझे interrupt करने के लिए. Nobody is there who can give me instructions. Who can disturb me? जो मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ऐसा कोई नहीं है. सो आई फील माई सेल्फ लाइक दिस वे. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, एमेंडा. अगेन हर मदर सिंह, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? आई आस्क यू टू क्लीन योर रूम ऑल्सो. Neither you finish your homework nor you cleaned your room. And I thought that I asked you to clean your shoes also. और मुझे ध्यान है कि मैंने तुमसे शूज़ भी क्लीन करने के लिए कहा था.
बट यू हैवंट डन एनी ऑफ दीज, बट तुमने तो इनमें से कुछ भी नहीं किया है. इट हैपन्स विद यू ऑल्सो चिल्ड्रन, वेन एवर योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू एनी वर्क एंड यू डोंट डू. ओके, आपने वो वर्क नहीं किया होता है, आप वो काम नहीं करते हो, तो यू फील अ लिटिल बिट गिल्टी, आपको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है. एंड यू आर नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट योर आईज विद योर पेरेंट्स आईज. ओके, तो शी इज फीलिंग गिल्टी. वो कैसा फील कर रही है? गिल्टी फील कर रही है, बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग हर मदर. नेक्स्ट लाइन, what is she feeling? She is feeling, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Orphan means yes, one who don't have parents, यानी कि जो अनाथ होता है, इसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको उसको ऑर्फन बोलते हैं. Hushed is secret, quietly, secretly. तो she is saying, बट आई फील माई सेल्फ एज इफ आई एम एन ऑर्फन. मुझे लगता है कि जैसे मैं ऑर्फन हूँ. आई डोंट हैव माई पेरेंट्स, मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं हैं. एक्चुअली यू कैन थिंक चिल्ड्रन कि यहाँ पर एक बच्ची, यहाँ पर एक टीनेजर, एक गर्ल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है अपने पेरेंट्स, अपनी मदर के बार बार कहने से, उनकी वो जो बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं, वो उसको इतने बुरे लगते हैं, उनको फॉलो नहीं करना चाहती है. दैट शी फील्स दैट आई एम नॉट हैविंग पेरेंट्स, मेरे तो पेरेंट्स ही नहीं हैं. अगर मेरे पेरेंट्स होते तो मुझे इस तरह से थोड़ी करते. मुझे भी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई वेज. तो शी इज सेइंग कि आई फील माई सेल्फ दैट एज इफ आई एम रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड आई एम लिविंग द इम्प्रेशन ऑफ माई फुट. मेरे पैरों के इम्प्रेशन जो है वो फुट डस्ट पर पड़ रहे हैं, सैंड पर पड़ रहे हैं. आई एम मेकिंग इमेजेस देयर, मैं वहाँ पर कुछ इमेजेस बना रही हूँ. एंड आई एम फीलिंग दैट साइलेंस इज गोल्डन. आई एम इंजॉइंग दैट थिंग, मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू लिव लाइक दिस, मैं तो इसी तरह से रहना चाहती हूँ. फ्रीडम इज सो स्वीट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फ्री एंड फ्रीडम इज ऑब्वियसली स्वीट. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Now her mother says, don't eat chocolates. Why do you eat so much chocolates? You should not eat chocolates because chocolates harm. जो chocolates और toffees होती हैं वो नुकसानदायक होती हैं, harmful होती हैं. तो her mother is saying that you should not eat chocolates. Why do you eat so much chocolates? You remember your acne? You have acne problems. If you eat much chocolates, then acne is there. Acne is pimples. Face पे pimples हो जाते हैं और टीनेज में तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं बच्चे. So her mother is saying that you should keep this thing in your mind that chocolate is responsible for acne problem. Avoid this thing. And children in our society, it's a general thing that girls से कहा जाता है you should टेक केयर ऑफ योर स्किन, यू शुड टेक केयर ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड ऑल. इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं. तो शी इज दैट मदर इज ऑल्सो हैविंग कंसर्न फॉर हर डॉटर एमेंडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. अब एमेंडा इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर मदर. एमेंडा अपनी मदर की तरफ अटेंशन पे नहीं कर रही है. हर मदर इज फीलिंग इरिटेशन, उसकी मदर को इरिटेशन फील हो रही है, इरिटेटेड फील कर रही है वो. शी इज सेइंग विल यू लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, देख कर बात करो. ओके, I'm talking to you. Pay attention to me. But Amanda is feeling guilty, okay, as she hasn't done her homework also. I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Rapunzel. Rapunzel is a word here. There's a character, okay, and it's related to a fairy tale. I tell you, it's important to tell you about Rapunzel because in board exams questions are asked sometimes. There was a couple, okay, they were going to be parent. वो एक कपल था और उनकी बहुत ही जल्दी एक बेबी होने वाला था. जो वाइफ थी शी फेल इल और उसको चाहिए था, उसको कुछ हर्ब चाहिए थी. डॉक्टर ने कहा था कि उसको कुछ हर्ब की ज़रूरत है, वो ही खाकर वो ठीक होगी. उन्हीं के घर के सामने देयर यूज्ड टू लिव अ विच, एक चुड़ैल रहती थी, विच रहती थी इन अ फोर्ट और पैलेस एंड ऑल, जो भी कुछ था वहाँ पर रहती थी वो. तो somebody tells that person कि you can get that herb from there. तुम्हें वो हर्ब जो जड़ी बूटी है वो वहाँ से मिल सकती है. वो पर्सन उसके पास जाता है, उस विच के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है देने के लिए. दैट विच
becomes ready to give that herb. वो विच उसको हर्ब देने के लिए रेडी हो जाती है, बट वो एक कंडीशन रखती है कि वेन एवर योर वाइफ विल डिलीवर अ चाइल्ड यू विल हैंड ओवर दैट टू मी. जब कभी तुम्हारी वाइफ किसी बच्चे को जन्म देगी तो तुम वो मुझे हैंड ओवर कर दोगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट हैविंग एनी किड. बट दैट पर्सन वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बट इट वॉज अ मैटर ऑफ द लाइफ ऑफ हिज वाइफ एज वेल एज चाइल्ड. ओके, तो वो रेडी हो जाता है और जब वो वैन शी डिलीवर्स अ बेबी गर्ल वो उसको लेने आ जाती है और विच अपने पास रखती है उसको अकॉर्डिंग टू हर, उसको पालती पोसती है. ओके, एंड शी कीप्स दैट रेपुंजल दैट गर्ल इन अ टॉवर. बहुत एक लंबा टॉवर था एक बड़ा सा, वहाँ पर उसको रखती है वो. एंड शी डजंट अलाउ हर टू गो एनीवेयर. वो उसको कहीं जाने के लिए अलाउ नहीं करती है. रेपुंजल grew up and she had long hair. She had beautiful hair, golden hair. उसके बहुत ही beautiful hair थे, golden hair थे, बहुत ही लंबे थे. जब कभी विच को ऊपर जाना होता था टॉवर पर तो वो रेपुंजल से बोलती थी let down your hair, अपने बालों को नीचे डालो, और उन हेयर की हेल्प से वो ऊपर चढ़ जाती थी. यही होता था. एक्चुअली रेपुंजल ऑल्सो वॉन्टेड टू गो आउट. वो बाहर जाना चाहती थी, वो भी देखना चाहती थी ब्यूटी को एंड ऑल, बट शी वॉज नॉट अलाउड. वन डे वॉट हैपन्स, एक प्रिंस आता है और वो उसका ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा गाना भी गाती थी. वो उसका गाना सुनता है एंड ही फेल इन लव विद दैट रेपुंजल. वो उस रेपुंजल के साथ उसको प्यार करने लगता है. बट व्हाट हैपन्स, अब ये बात वो उसको कहता है कि इफ़ यू वांट टू गो यू शुड कीप ट्रस्ट ऑन मी. ओके, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ए बैड पर्सन. वो इस तरह से धीरे धीरे वो मिलने लगते हैं एंड दे फेल इन लव. और वो प्रिंस एक दिन उसको वहाँ से ले जाता है. इस तरह से उसको फ्रीडम मिल जाती है उस ट्रैंक्विल से, उस विच से. ओके, सो शी सेइंग आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर. मैं रेपुंजल हूँ, मुझे केयर नहीं है. जिस तरह से रेपुंजल ने उस विच की केयर नहीं की कि आफ्टर ऑल शी वॉज हर मदर, वो उसकी मदर ही थी. भले से ही वो एक विच थी बट थी. बट दिस वॉज ऑल्सो बैड दैट, वो भी अच्छी बात नहीं थी कि वो उसको बाहर जाने से रोकती थी, उसको वहीं पर बंद करके रखती थी. तो वो कहती है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर. मैं रेपुंजल हूँ, आई डोंट केयर एनीबडी. लाइफ इन अ टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. एक ट्रैंक्विल में रहना, कितनी बंदिशों के साथ रहना, कितने इन सब चीज़ों के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. एक ऐसे टॉवर में रहना कि जहाँ पर मैं ना तो किसी से मिल सकती हूँ ना कहीं आ जा सकती हूँ. इट्स टू डिफ़िकल्ट. आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं डालूंगी. मीन्स रेपुंजल अगर अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं डालती तो क्या वो विच थी वो ऊपर आ पाती? ऑब्वियसली नॉट. तो इस तरह से उसने जो भी अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगवाई थी वो क्यों लगवाई थी? क्योंकि बिकॉज शी लेट दैट विच कम अपॉन, वो अपनी उस विच को वो ऊपर आने देती थी. तो वो कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं डालूंगी, यानी किसी भी प्रॉब्लम को मैं नहीं आने दूंगी. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा. एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा. अब जब उसकी मदर उसको इतना ज़्यादा डांटती हैं तो शी स्टार्ट्स क्राइंग. वो रोने लगती है. बच्चे अक्सर रोने ही लगते हैं अगर उनके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो उसकी मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. सल्किंग मीन्स सैड, क्राइंग. स्टॉप क्राइंग एमेंडा, डोंट क्राई. अगर मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ तो स्टॉप क्राइंग. यू आर ऑलवेज सो मूडी. यू आर अ मूडी गर्ल. इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी वर्क यू डू दैट वर्क जस्ट दैट. अगर तुम कुछ करना चाहती हो तुम कभी करती हो, और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम नहीं करती हो. सो यू आर अ मूडी गर्ल. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मूड. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा. कोई अगर देखेगा तो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूँ, कितना रोकती हूँ, कितना डांटती डपटती हूँ, कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाती हूँ. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम माई चिल्ड्रन. नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस हियर. You can see in this poem Amanda, Amanda, Amanda. This word has been repeated again and again. So when words are repeated, which literary device is there? Yes, repetition. Okay, underline Amanda, Amanda, and write repetition. You can see there in the second last stanza Rapunzel. Rapunzel has been used here to metaphorize. Okay, as a metaphor Rapunzel को use किया है तो metaphor. So metaphor is there. Now see the rhyming scheme of the poem.
You can see in the first stanza, Amanda, Amanda, state and Amanda. Amanda word has been repeated and it's giving the same sound. Okay. So A, B, A is the rhyming scheme of the first stanza. Now see the second. See me blissfully. E. The sound, which sound is there? E. So what will be the rhyming scheme? C, C, C. Next is again Amanda, Amanda, shoes, Amanda. So A, D, A. Next is street, feet, sweet. E, E, E. Next is Amanda, Amanda, you, Amanda. A, F, A. The next is care, rare, hair. G, G, G. And the last stanza is Amanda, Amanda, you, Amanda. A, H, A. Okay. So dear children, this was the rhyming scheme of the poem. I hope you have understood it well. In the next class, we will meet with a new topic. Till then, goodbye and take care.